Morning, sir. Good morning, Mita. Good morning, sir. Sir. Have you returned the application which you have been sent yesterday for filling up the form? Did you got everyone and did you return to after filling? Yes, sir. Good. It was a form where you have to select the mode of the exam. How you would like to give the exam on WhatsApp, yeah, Google Class, or you want to pick up the question paper from the office. It was an option for you, right? Yes, sir. Yes, sir. Good. Today we'll get the circular regarding exam. Okay, I will send the circular. You will receive the circular regarding the exam. Okay, Okay, sir. Alright, sir. fine. Now let us see the class today. Let us begin. Yes, sir. You can. Yeah. Dear students, today we shall learn the fourth chapter. The name of the chapter is The Happy Prince. Good morning, sir. Good morning, Vita. You will see in this lesson how the prince initially he was very happy, but after some times when he saw the misery of the world, misery of the city, he became very sad. He became very distressed. How he is removing the distress, yeah, misery of the world, misery of the city, you will see in this lesson. Now this prince is in the form of a statue, a non-living thing. Even he want to remove the misery of the city. When he was living, when he was alive, he was very happy because that time there was a very few misery in the city. Very few people were unhappy. So the prince was also very happy to see the people of the city. But after his death, when he stand up, yeah, he has been erected on the path in the city as a form of a statue. He became very sad to see the misery of the city. All over the city, there was misery and misery. The people were very unhappy. So the prince, though who were in the beginning very happy, now he is very unhappy. So here the name of the chapter is The Happy Prince. Prince. How the happy prince became unhappy, let us see through the story. So here I'm going to share the screen. Let us see how he became unhappy. Yes. Yeah. See here. The writer of the story is Oscar Wilde. Oscar Wilde was an Anglo-Irish playwright, novelist, poet, and critic. He is regarded as one of the greatest playwrights of the Victorian era. In his lifetime, he wrote 9 plays, 1 novel, and numerous poems, short story, and essay. Means he was the greatest writer as well as the poet. Many writing as a story, as a novel, as a poem he had done in his life. So today, let us see written by him the story. The name of the story is The Happy Prince. Here, children,
as I mentioned you, in the beginning, the prince was very happy, but now he became unhappy. So why he became unhappy? Let us see here. It is about the story of a statue. The happy prince covered with gold and many fine jewels. This is the story of a statue. As I mentioned you, after the death, he was erected by an artist, and now he is standing on the way as a form of a statue. So this is the story of a statue. The happy prince covered with gold and many fine jewels. Means this statue has been covered with gold and फाइन ज्वेल, माने इसका जो निर्माण किया गया स्टैचू का, उसको सोने से और बहुत सारे जो है आभूषण जो है ज्वेलरी उससे कवर किया गया है, एंड इट इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. इट सिट्स ओवरलुकिंग द सिटी. Overlooking the city means it is very high. So all the city is being seen from here. One day, a swallow bird seeks shelter under the statue and discovered the prince not happy but sad. One day, a swallow bird seeks shelter under the statue. एक दिन क्या होता है, एक जो swallow जो bird है वो अचानक आ करके इसी के ऊपर स्टैचू के ऊपर जो है अपना शेल्टर मतलब रहने का जगह बना लेता है. और डिस्कवर द प्रिंस नॉट हैप्पी बट सैड. और उसे पता चलता है कि जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ यह एक प्रिंस का स्टैचू है और ये स्टैचू आज हैप्पी नहीं है. सी द पब्लिक ऑफ द सिटी डिडंट डिस्कवर इट, only a bird swallow discovered it that prince is not happy. लोग रोज आते थे, रोज जाते थे उसी रास्ते से, बट किसी ने पता नहीं लगाया कि यह जो स्टैचू है जो प्रिंस का बना हुआ है यह अनहैप्पी है, यह किसी ने पता नहीं लगाया. बट एक बर्ड स्वालो जो उसके ऊपर जाके बैठती है और उसे पता चलता है कि यह जो स्टैचू है राजकुमार का वो आज हैप्पी नहीं है, सैड है, यह उदास है. हाउ शी डिस्कवर्ड इट, लेट अस सी. एक पंछी को कैसे भला पता चला कि यह जो है स्टैचू जो है वो हैप्पी नहीं है, वो तो नॉन लिविंग है. फिर भी एक बर्ड को यह फीलिंग हो गया कि यह जो स्टैचू है जो राजकुमार का है यह हैप्पी नहीं है, यह सैड है. हाउ, लेट अस सी. एक्चुअली द बर्ड सॉ द टीयर्स flowing from the statue, flowing from the eye of the statue. जिस समय बर्ड वहां गई बैठी तो देखी कि जो प्रिंस का जो स्टैचू है उसके आंखों से जो है वो पानी निकल रहा था, टीयर्स, आंसू निकल रहे थे. तो उस आंसू को देख करके इस पंछी को पता चला कि लग रहा है शायद ये जो प्रिंस है, ये जो स्टैचू है वो खुश नहीं है, इसलिए इसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं. हो सकता है कि कोई ऐसा चीज हो जो मेल्ट होके गिर रहा हो और वो आंसू के रूप में उसे दिखाई पड़ा स्वालो को, ऐसा हो सकता है. उसे लगा कि ये आंसू है. द बर्ड बिकम्स फ्रेंडली विद द प्रिंस एंड ट्राई टू मेक हिम हैप्पी by assisting him in his desire to ease the suffering of others. Now it saw that the prince is unhappy. So what did the bird, I mean swallow, do to make it happy? अब उसको खुश करने के लिए, प्रिंस को खुश करने के लिए स्वालो ने क्या किया? Let's see. The bird become friendly first of all. The bird becomes friendly with the prince. उस प्रिंस कुमार के साथ, उस राजकुमार के साथ जो बर्ड है वो पहले तो दोस्त बन जाता है. एंड ट्राई टू मेक हिम हैप्पी बाय असिस्टिंग हिम. असिस्ट माने हेल्प, और उसे हेल्प करते हुए उसे खुश कर देता है बर्ड. हिम इन हिज डिजायर टू ईज द सफरिंग ऑफ अदर्स. दूसरे के जो सफरिंग है, दुख, सफरिंग मीन्स दुख, जो दूसरे का दुख है उसे पूरा करके बर्ड जो है प्रिंस को हैप्पी बनाने का कोशिश करता है.
अब दूसरे के दुख को दूर करने में प्रिंस का हैप्पीनेस, लेट अस सी। इट मीन्स ये है कि द प्रिंस वाज अनहैप्पी टू सी द माइजरी ऑफ द सिटी। इसका मतलब है कि पंछी ने अनुमान लगाया कि ये जो शहर है जहाँ पर स्टैचू खड़ा है इतना बड़ा, आसपास के लोग बहुत दुखी हैं, इसीलिए प्रिंस भी दुखी है। तो आसपास के लोगों को हेल्प करके यह पंछी राजकुमार को, आई मीन स्टैचू को हैप्पी बनाने का कोशिश करता है। नाउ लेट्स, इट प्लक्स आउट द ruby, the sapphire, and other fine jewels from the statue and deliver them to those who are poor and needy. कैसे हेल्प करता है बर्ड? तो इट प्लक्स आउट द रूबी, यह तोड़ लेता है। प्लक मतलब उस स्टैचू में, आई टोल्ड यू ये स्टैचू आई मेड अप ऑफ गोल्ड एंड ज्वेलरी, तो इन डिफरेंट ज्वेलरी विद डिफरेंट स्टोन्स हैज बीन मेड। तो ये जो चूंकि स्टैचू था उसमें काफी जो है प्रेशियस स्टोन लगे हुए थे, कीमती पत्थर लगे हुए थे। उसी एक एक पत्थर को वह तोड़ करके जो नीडी है उससे वह डिलीवर करता है, बांट देता है। इस प्रकार लोगों के दुख जो है दूर हो जाते हैं और इस प्रकार इधर राजकुमार भी हैप्पी हो जाता है। नाउ सी इन डिटेल्स। The story of the Happy Prince dwells upon the theme like social injustice, redemptive power of love, and the loss of innocence. The Happy Prince dwells upon the themes like social injustice. जो सामाजिक अन्याय है, सामाजिक अन्याय क्या है कि इन सोसाइटी few are very rich, few are very happy, but others few are very unhappy. They are hunger, they don't have food to survive. This is a injustice, social injustice. इसी को कहते हैं सामाजिक अन्याय। कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा धनी हैं, कुछ लोग जो है बहुत बड़े बड़े महलों में रहते हैं, अपार सुख सुविधा के साधन उनके पास है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है वो भी नहीं है। इसलिए यहाँ राइटर जो है सोशल इनजस्टिस की बातें करता है, सामाजिक अन्याय। रेडेम्पटिव पावर ऑफ लव एंड द लॉस ऑफ इनोसेंस। कह रहा है कि जो प्यार है, लव, सहानुभूति, ये सब जो है समाज से दूर हो रहा है, कोई को किसी से कोई मतलब नहीं है। एंड द लॉस ऑफ इनोसेंस, जो इनोसेंस है वो लॉस हो चुका है। लॉस, इनोसेंस का लॉस होना मीन्स ये है कि हर व्यक्ति जो है बुराइयों से भर चुका है, कोई ना कोई बुराई सब बच्चों में, सब लोगों में आ चुके हैं, या मैक्सिमम लोग जो है उनमें बुराई का गुण जो है वो आ चुका है। इन द स्टोरी वी कम अक्रॉस ए स्टैचू हु एट वन टाइम अ रियल प्रिंस। एज आई टोल्ड यू कि एक समय था जो आज स्टैचू है वो वास्तव में रियल प्रिंस हुआ करता था। पहले जो है वो प्रिंस था, बाद में आफ्टर डेथ his statue has been made up of. When the prince was alive, he was a happy person. जब वो जिंदा था, alive means जिंदा, when the prince was alive, he was a happy prince, happy person. वो बहुत खुश था बेटा। He lived in the palace and didn't know about human suffering. वो महलों में रहता था, क्योंकि वो तो राजकुमार था ना, तब पैलेस में रहता था। पैलेस मतलब राजमहल। एंड डिडंट नो अबाउट ह्यूमन सफरिंग, और लोगों के दुख के बारे में उसे पता नहीं था। हाउ डू ही नो? बिकॉज ही वाज लिविंग इन द पैलेस, एंड पैलेस इज सच अ होम वेयर ऑल द फैसिलिटीज इज इनसाइड द होम, इनसाइड द पैलेस। देयर इज नो नीड टू कम आउट ऑफ द पैलेस, ऑल द फैसिलिटीज are inside the palace. So he doesn't know
व्हाट इज द सफरिंग। क्योंकि जब वो बच्चा था राजकुमार, तो सारी सुविधा की चीजें उसके महल में ही हो जाते थे। बेचारा वो संसार से बाहर निकला नहीं, महल से बाहर तो निकला नहीं, इसलिए वो संसार को दुख को जान ही नहीं पाया कि संसार में दुख होता कैसा है। ये लाइफ वाज फुल ऑफ जॉय, उसका जीवन खुशियों से भरा था। अपॉन हिज डेथ हिज स्टैच्यू वाज बिल्ट एट द टॉप ऑफ ए टॉल कलम इन द सिटी। मरने के बाद शहर में सबसे ऊंची उसकी स्टैच्यू बना दी गई। The statue was covered all over with thin lips of fine gold. For eyes he had two bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword hilt. Now let us see what was it made up of. उसको बनाने में क्या क्या खर्चा लगा था। Let us see. Since he was a prince from very rich family, so his statue was made up of fine gold, costly stone, precious stone like as a sapphire, रूबी etc। क्योंकि वो तो राजकुमार था ना बेटा, तो मरने के बाद उसके तो उसी जैसा जो धनी था, इसलिए स्टैचू भी उसी प्रकार बनाया गया। सोने चांदी महंगे महंगे पत्थर उसमें लगा दिया गया। द स्टैचू ऑफ द प्रिंस The statue of the happy prince looked beautiful and everyone in the city loved to see. वो इतना सुंदर लगता था मूर्ति जो स्टैचू था कि everyone liked to see the statue in the city. Since he was placed high above the city on a tall column, the prince was able to witness all the sorrow and suffering which the common people faced in their daily life. चूंकि वह शहर में सबसे ऊंचा बिल्डिंग था, इसलिए वहां से वह अपने शहर में जो सफरिंग था, जो दुख था, लोगों के जो कॉमन पीपल के जो दुख था, उसको वो आसानी से देख पाता था। देखने का मतलब है फीलिंग्स। क्योंकि जो ऊंचे भाग में बैठेगा तो वहां से तो शहर के एक एक पार्ट दिखाई पड़ता है, तो हर चीज वहां से उसे दिखाई पड़ रहा है। ऐसी कवि की कल्पना है ये। But the prince remained ignorant them during his lifetime. चूंकि अपने जीवन में इन सभी बातों से वह इग्नोरेंट मतलब अनजान था। Why ignorant? Because as I mentioned here, he was living in the palace and never came out of the city. जैसा कि पहले बताया गया कि वो राजमहल में रहता था और राजमहल में रहने के कारण उससे बाहर आने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए वह इग्नोरेंट था, मतलब अनजान था इन सभी दुखों से जब तक वो जिंदा था। दिस मेड द प्रिंस वंस हैप्पी वेरी सैड। वही राजकुमार जो एक बार खुश था, आज वह उदास है, वेरी सैड। His eyes got watered and large drops of tears began to run down his golden cheeks. आज उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और वो आंसू उसके जो गोल्डन चीक है, जो गाल है, उसके ऊपर जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं, वो उसी बर्ड को दिखाई पड़ रहे हैं। A little swallow who had alighted between the feet of the happy prince to spend the night there became curious to know where did the drop of water fall from. क्योंकि वह पंछी जो है वो नीचे उनके पैरों के बीच में आकर बैठी थी, तो वहां से जो पानी गिर रहा था वो उसके ऊपर गिरने लगा। वो सोची कि भला इस स्टैचू में मेरे ऊपर पानी कहाँ से गिर रहा है। He looked up, वो ऊपर की ओर देखती है, and saw the eyes of the happy prince full of tears. उससे पता चलता है कि ये जो प्रिंस है उसकी आंख जो है आंसुओं से भरे हुए हैं। The bird took pity on the prince. उस पंछी को राजकुमार के बारे में या राजकुमार पर दया आ गई, and became ready to assist him in his desire to ease the suffering of common people. और वह निश्चय कर लिया कि मैं इनके दुख को दूर करूंगा, लोगों के दुख को दूर करके राजकुमार के दुख को मैं दूर कर दूंगा।
He became the messenger of the prince and agreed to remove the fine gold and jewels from his statue to distribute them among the poor and the needy. Then what happened? He became the messenger of the prince. और इस प्रकार वह राजकुमार का दूत बन गया. And agreed to remove the fine gold. और वह सहमत हो गया कि हम आपकी जो गोल्ड है, जो ज्वेलरी है, वो एक एक करके हम निकालेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूट, और हम बांट देंगे देम अमंग द पुअर एंड द नीडी. जो गरीब लोग होंगे, जो नीडी लोग होंगे, उनके बीच में हम आपके जो कीमती जो पत्थर है या सोने हैं या चांदी है या स्टोन है, उसे हम लोगों के बीच बांट करके और दुख दूर करेंगे और आपको खुश करेंगे. पंछी ने निर्णय ले लिया. He started with plucking the ruby from the prince's sword. सबसे पहले जो राजकुमार का तलवार था वो रूबी का बना हुआ था और उन्होंने रूबी को वहां से निकाल लिया. And giving it to the seamstress who had no money to feed her ailing child. और वो वैसे एक स्त्री को दे दी जो माला गुथने का काम करती थी. Seamstress who had no money to feed her ailing child. जिसके जो बीमार बच्चा को खिलाने के लिए पैसा नहीं था. Then he plucked a sapphire from one of the eyes of the statue. उसके बाद वो उनके एक आंख से सफायर जो है, जो कॉस्टली प्रेशियस स्टोन होता है, उसे निकाल लेता है. And gave it to the playwright who was too poor to make fire in the winter to continue his writing. एक ऐसे राइटर को जो वो कहानी लिखना चाहता था, लेकिन उसके पास ठंड में बचने के लिए कोई सहारा नहीं था, उससे ले आकर के वो दे देता है. He was also very hungry and feeling weak. वो भी बहुत भूखा था और कमजोर महसूस कर रहा था. इस प्रकार आपने देखा कि किस तरह से जो बर्ड है वो एक एक चीज को तोड़ तोड़ तोड़ना तोड़ करके और जो नीडी और सफरिंग है उसे ले आकर के वो हेल्प करता है. One day the prince saw a match girl who was being beaten by her father for letting her matches fall in the gutter. एक दिन क्या हुआ, राजकुमार ने देखा कि एक लड़की जो माचिस बनाती थी उसके पापा उसे पीट रहे हैं. क्यों पीट रहे हैं? क्योंकि उसका माचिस जो है मिस्टेक से गटर में गिर गया. जो बेचने ले जा रही थी, जो माचिस बेचने के लिए ले जा रही थी वो गर्ल, मिस्टेक से वो माचिस जो है सब वो गटर में गिर जाता है, तो उसके पापा उसे पीटते हैं. द प्रिंस हार्ट फिल्ड विद पिटी फॉर द गर्ल. उस लड़की के बारे में राजकुमार को दया आ गई. He immediately commanded the swallow to pluck out his other eyes and help the girl. वह तुरंत जो है swallow को आदेश देता है कि जो मेरी दूसरी वाली आंख जो बची हुई है उसे भी तुम तोड़ लो और तोड़ करके उस गर्ल को ले आकर दे दो. But the swallow was not ready to do so because this would make the prince completely blind. लेकिन यहाँ पर जो पंछी है वो ये काम करना नहीं चाहता था, क्योंकि ऐसा करने से वो पूरी तरह राजकुमार जो है वो अंधा हो जाता है. इससे पहले तो एक आंख निकल चुका है पहले ही, वो जो प्ले राइटर है उसको देने के लिए, अब एक ही आंख बचा हुआ था. तो इसलिए स्वालो जो है वो ये काम करना नहीं चाहता था, बट उसे मजबूरी में करना पड़ता है. Because this would make the prince completely blind. Once he being insisted, he plucked out the prince's other eye, so past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. But finally, राजकुमार उससे दबाव देता है स्वालों को कि नहीं,
तुम्हें करना होगा। और इस प्रकार वह दूसरी आंख में निकाल करके और उस लड़की के हाथ में ले आकर के उससे वह दे देता है। The little bird decided not to leave the company of the happy prince who had gone blind now. Now the prince was totally blind. So here the little bird, as you know the story, he wanted to go somewhere in another country for migration. But here he cancelled the plan because now the prince was totally blind. ऐसा जैसा कि आप कहानी में पहले ही जानते हैं, यह बर्ड जो है कहीं जाना चाहता था, लेकिन अभी चूंकि राजकुमार पूरी तरह से अंधा हो गया, उसे छोड़ करके वह जो है अब वो जाना नहीं चाहता है, वो अपना निर्णय को चेंज कर देता है। Although the prince was not able to see the sorrow or suffering anymore, he knew it was there. So he instructed the bird to take off the fine gold he was covered with and give it to the poor. इतना पर से भी उन्हें सुख नहीं मिला राजकुमार को। उसे लगा कि अभी भी इस शहर में दुख है। तो फाइनली वह जो है ऑर्डर देता है, क्या? He knew it was there, so he instructed the bird to take off the fine gold he was covered with. बोला कि जो मेरे बॉडी पर ये जो सोने के लगाए हुए हैं पत्र, इसे भी तुम निकाल लो। टेक ऑफ, ले लो, मेरे बॉडी में जो सोने लगाए हुए हैं उसे भी ले लो। The fine gold he was covered with and give it to the poor, और इसे भी तुम ले आकर के गरीबों को दे दो। The bird followed his words and picked up leaf after leaf of the gold till the happy prince looked quite dull and grey. इस प्रकार वो बर्ड जो है एक एक कर प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा वो सोना उसके बॉडी से निकालते रहा, तब तक निकालते रहा जब तक कि वह स्टैचू देखने में टोटल डल नहीं हो गया, ग्रे नहीं हो गया। Then the snow came. अचानक बर्फ आता है एंड द पुअर लिटिल स्वालो ग्रीव ओल्डर एंड ओल्डर। बेचारा वो स्वालो वो ओल्ड हो जाता है, धीरे धीरे मतलब बूढ़ा हो जाता है और उसे ठंड लगने लगती है। क्यों ठंड लगने लगती है? क्योंकि स्नो आ चुका है और वो इसी ठंड से बचने के लिए वो दूसरी जगह जाना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्रिंस के पास चला जाता है और प्रिंस को हेल्प करने के लिए वो अपना लाइफ को सैक्रिफाइस करता है। यहाँ स्वालो भी इस प्रकार मदद करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं और स्वालो भी धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है। और अब अचानक बर्फ आ गई, मौसम बदल गया और ये स्वालो को भी ठंड लगने लगा। बट ही डिडंट लीव द प्रिंस, फिर भी वह राजकुमार को छोड़ करके नहीं गया। इवेंचुअली he grew weak and died from exposure and exhaustion. दुर्भाग्य की बात है, वो बेचारा स्वालो कमजोर हो जाता है और वहीं पर जो है थक करके वो मर जाता है। Just at that moment, a curious crack sounded inside the statue as if something had broken. जिस समय वो मरता है, अचानक उसी समय मूर्ति से अचानक एक क्रैक का साउंड जो है जोर से निकलता है, मानो जैसे कि वह मूर्ति टूट चुका हो। It was in fact the leaden heart that had snapped right in two at the loss of the sweet and kind swallow. वाकई में यह प्रिंस का वह हृदय था, दिल था, जो आज आवाज करके वो फूट गया, क्योंकि स्वालो जो इतना मदद करने वाला था, जनता को इतना मदद किया और अब आज वो नहीं रहा। इस प्रकार से उसके मरे हुए देख करके यहाँ पर राजकुमार की आत्मा जो है वो भी काफी दुखी है और अचानक वो भी जो है अचानक साउंड निकल जाता है उसमें से। द स्टैचू वाज नो मोर
ब्यूटीफुल एंड यूजफुल। अब वो स्टैचू टूट चुका था, अब वो देखने के काबिल नहीं था, अब वो सुंदर नहीं लग रहा था। इट स्टूड डेजर्टेड, एक रेगिस्तान बन चुका था, टूट गया था, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर हो गए थे। सो द टाउन काउंसिलर एंड द मेयर पुल्ड इट डाउन, इसलिए जो शहर का जो काउंसिलर है और मेयर, जैसे गांव में ग्राम पंचायत में मुखिया जी होते हैं, उस से मेयर होते हैं शहर में मेयर, वो क्या करता है, इसे वहां से हटवा देता है। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस बट द ब्रोकन हार्ट डिडंट मेल्ट, उससे वो उस मूर्ति को आग में पिघलाना चाहते हैं, बट ब्रोकन हार्ट डिडंट मेल्ट, लेकिन वो टूटा हुआ हृदय वो फिर से पिघल नहीं पाता है। नॉट मेल्ट, क्योंकि उसका दिल तो पहले टूट चुका है, तो टूटा हुआ दिल वो पिघल नहीं पाता है। सो दे थ्रू इट ऑन ए डस्ट हीप वेयर द डेड स्वालो वाज लाइंग, इस प्रकार उस स्टैचू को जो टूटा हुआ था उसको वहीं पर ले आकर के फेंक दिया जाता है, सेम जहाँ पर स्वालो जो है वो फेंका गया था, मरा हुआ स्वालो को, दोनों एक ही जगह पर चले जाते हैं। When God asked one of his angels to bring the two most precious things in the city, the angel brought him the laden heart and the dead body. यदि ईश्वर भगवान अपने एंजल, जो मैसेंजर होते हैं गॉड के मैसेंजर, उसमें से किसी एक को पूछे कि कौन ऐसी जो चीजें हैं महत्वपूर्ण शहर में जो आना चाहिए, तो एंजल का जवाब था कि एक तो टूटा हुआ जो दिल है और एक मरा हुआ जो बर्ड है, सबसे पहले शहर में इसे लाने की आवश्यकता है। वो अपने गॉड जो है एंजल से पूछ रहे हैं। एंजल क्या होते हैं? वो गॉड का मैसेंजर होते हैं, जो गॉड की बातों को यहाँ से लेके वहां तक पहुंचाते हैं। गॉड ने कहा, यदि मैंने पूछा तो उसका जवाब आया कि यदि कोई दो कीमती वस्तु शहर में लानी हो तो वो लाना चाहिए हमारे समझ से, तो वो जो राजकुमार का टूटा हुआ दिल और ये जो बर्ड है जो मरा हुआ है, उसे सबसे पहले लाना चाहिए। गॉड वेलकम द टू इन हिज गार्डन ऑफ पैराडाइज एंड डीम्ड देम ब्यूटीफुल क्रिएशन। इस प्रकार ईश्वर क्या किए, अपने बनाए हुए खुद के स्वर्ग में वो दोनों को ले गए और खूब सुंदर बना दिए। Dear children, you saw how the sacrifice of prince and the sacrifice of bird made them, give them a beautiful place. They both went into paradise, heaven. वे दोनों को जगह मिला, कहाँ पर जगह मिला? स्वर्ग में जगह मिला। ईश्वर जो है वो दोनों को एक साथ ले गए और नए सृष्टि की रचना उन दोनों को स्वर्ग में कर दी है। आपने देखा किस प्रकार से उनका जो सैक्रिफाइस है, उनका जो त्याग है, या पुअर के प्रति जो उनका थिंकिंग है, उन्हें कहाँ तक पहुंचा दिया है। आज लिविंग बीइंग जो अलाइव है वो सफरिंग को दूर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो जो स्टैचू जो नॉन लिविंग था उसकी कानों में समाज के दुख दर्द पहुंच जाते हैं, बट जो जीव है, जो जिंदा लोग हैं, वो जो है समाज को दुख दूर नहीं कर पा रहे हैं। और एक निर्जीव जो है किस प्रकार से लोगों के दुख दर्द को समझ जाता है और उसे अपने तरफ से कोशिश करता है दुख दूर करने का। तो आज ये कहानी से पता चलता है कि समाज जो है वो क्या है, ब्लाइंड हो चुका है। समाज के लोग अंधे हो चुके हैं। जीवन रहते हुए भी एक दूसरे को दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक निर्जीव जो नॉन लिविंग थिंग है उससे फीलिंग होता है दूसरे के दुख को, लेकिन जो जीवन है, जो जिंदा लोग हैं, उससे फीलिंग नहीं है कि समाज में क्या हो रहा है। सो इन दिस वे this lesson is going to be over here. You saw how a beautiful lesson it was. Being a non-living, how
the statue of a prince and the bird which you don't give the value, जिसे हम वैल्यू नहीं देते हैं, एक बर्ड जो ह्यूमन बीइंग से कहीं ना कहीं तो तुच्छ समझा जाता है, लोग वैल्यू नहीं देते हैं, वो वैसे जो है दोनों मिल करके और समाज के दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं. What the great they both were. So here this lesson is going to be over. Hopefully you have understood the lesson well and you can answer all the question what will be asked. What was Prince, how he was happy in the beginning, how now he is sad, what had happened, why he was sad, how he removes the misery of the city, who helped it to remove the misery of the city, and from where the tears was coming, how the bird felt it. All these are the important question of this lesson. And the mayor of the city, councillor, what they did with the statue, what they wanted in the beginning, or finally what they did. And now God what did with them, where they got the place in the society. All the things hopefully you have understood. Now let us see. I would like to talk with you here, my dear students. Do you have any questions regarding this chapter or regarding exam you would like to share with me? Anyone? Do you have any question, any kind of question regarding the school you would like? You can share with me. Can you hear me, everyone? Yes, sir. Yeah. Any question do you have? No, sir. You all understand the lesson well? Yes, sir. Good, very good. And here one thing I would like to call, in Google Classroom, very few students have answered my questions. Not all. Very few people have given the answer, which I have checked and I have passed it. Maybe many of the students have got it. I have given the marks also. Right? But not Yes. all. Why? Sir. But I wanted to know why not you are doing all. It is a one kind of practice which will help you in the paper. It's so that you are not interested. This is showing you interest. Only I think 7-8 children have answered my question. Where all have joined. Almost you all have joined. In Google Classroom, I saw there in English. But very few of the children have answered my question. What is the problem? Have any problem you can share with me. कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको गूगल क्लासरूम में? No, sir. Sorry. Yeah, Amis, I saw, and many of the children have given the answer, but not all.